Okay, beta ji. So I'm going to start maths activity. So first of all, you have to match the following. Okay, एक साथ ही अपना आंसर सेंड करोगे. Hurry up. Recognize the angles. Which type of these angles are, and you will write in the chat box only. Beta ji, check your network. If my voice is cracking, if there is any problem from my side, then Gayatri ma'am is there to tell me. Okay. So, मैम अकेले चैट बॉक्स में ही लिखना है, नोटबुक yes, में नहीं लिखना? no, you can. Okay. Firstly, give the answer in the chat box. After that, you can write on your notebook also. Okay, beta ji, write your answer in the chat box. Very good. Well done. बेटा ये अभी तो एक्सपर्ट बन जाने चाहिए ना, इतना इजी है ये अभी टाइप्स ऑफ एंगल्स. आई एम गेटिंग ओनली फ्यू रिस्पॉन्सेज टिल नाउ. हरी अप. ओके, वेरी गुड. quickly send your responses. Sonia, Sandhu, beta, I will clear your doubt in the end. Okay, kindly remind me later. No need to unmute. Okay, very good. Oh, very good, very good. Okay, शालू हुजा के नेम से बेटा अनम्यूट कीजिए. Yes, ma'am. गुड इवनिंग बेटा. Good evening, ma'am. ओके, बेटा जी, acute angle is, which is the acute angle here? Yes, ma'am. Which is the acute angle from the given Ma'am, option? acute Yes. angle. Ma'am, acute में angle ma'am first है C. Okay. C. No. 89 This degree. is the option, but you have to tell from these numbers. Okay, degrees यहाँ पे given है ना. Which is the acute angle? Ma'am, 89 degree ma'am, because ये acute angle में आता है. Okay. What is the definition of acute angle? Can you tell me? Ma'am, How you recognize this angle? ma'am, because it comes on the right side. आपने ऐसे याद किया हुआ बेटा? Ma'am, I know. ओके, चलो ये बताइए राइट साइड और लेफ्ट साइड आप कैसे फाइंड करते हो? कैसे आपने पहचान रखी है उसकी, राइट साइड और लेफ्ट साइड की? मैम उसे ड्रॉ करके. Okay, but you have to learn the proper definitions of these types of angle. Okay, now mute yourself. So I'm going to tell you, Sonia, Sandhuji, stop muting others. Okay, acute angle beta. Acute angle is the angle which lies between 0 to 90 degree. Okay, सिंपल बेटा आपने यही बोलना था कि एक्यूट एंगल वो होता है जो 0 to 90 डिग्री के बिटवीन लाई करता है. ठीक है, आप सिंपल इस वर्ड्स में कह सकते हो. तो 89 डिग्री इज द एक्यूट एंगल. गॉट इट? गुरलीन, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा. गुरलीन फ्रॉम ब्लू सेक्शन, रोल नंबर 22. हरी अप. Good evening, ma'am. Very good evening beta. Yes, now you will tell what is the obtuse angle here. यहाँ पे obtuse angle कौन सा है? आपने रिस्पॉन्स दिया है ना, तो यू विल टेल विच इज द obtuse angle. Ma'am, 180. 180. बट आपने तो बेटा चैट बॉक्स में राइट किया है, जो सेकंड है उसका है सी ऑप्शन. ओके, यू हैव रिटन रॉन्ग हियर. आई एम गोइंग टू टेल यू. ओके, अभी आपको कंफ्यूजन है इसमें? Ma'am, yes. वाई? एक्यूट एंगल क्लियर हो गया अभी आपको? ओके,
तो जो 105 है, देखिए दिस लाइज बिटवीन 90 टू 180 डिग्री ना, 90 टू 180 के बिटवीन आता है 105, आता है ना गुरलीन? शो मी थम्स अप। ओके, सो दिस इज द ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है? द एंगल विच लाइज बिटवीन 90 टू 180 degree, that angle is the obtuse angle. Now next is 180 degree. It means ये 180 degree है, that is the straight angle, क्योंकि 180 डिग्री जो है वो प्रॉपर स्ट्रेट लाइन बनाता है जब एंगल हम ड्रॉ करते हैं, तो दिस इज द स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट इज द 90 डिग्री, ये तो पता होगा ना आपको, कौन सा है 90 डिग्री? यस गुरलीन, टेल मी, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। मैम राइट एंगल। ओके, वेरी गुड, यस दिस इज द राइट एंगल। ओके, यहाँ पे अभी हमने सभी टाइप्स कर ली हैं एंगल्स की, और जिनका डाउट भी था इसमें, आई होप उनका क्लियर भी हो गया होगा। ठीक है, सो माय नेक्स्ट इज, एज यू कैन सी हियर द फिगर। ओके, इस फिगर में बेटा जी देखिए बहुत सारी शेप्स हैं। ठीक है, मैं जूम कर रही हूँ इस शेप को। ठीक है, नाउ यू पीपल विल टेल yes, where is the line? Okay, you have to tell in this figure where is the line, which thing represents the line, which thing here, which thing represents the line? Okay, is there any another line? Can you see here the another line here? RQ is not the line beta, BA also not the line. Okay, अमनदीप बंगर, बेटा जी अनम्यूट कीजिए। Yes, ma'am. टर्न योर कैमरा ऑन बेटा, कैमरा ऑन कीजिए। ओके ओके, सो बेटा जी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइन? इन सिंपल वर्ड्स यू कैन स्पीक। क्या समझ में आया, क्या पता है आपको लाइन के बारे में? यू कैन सिंपली टेल। यू आर नॉट ऑडिबल बेटा, आर यू स्पीकिंग? Ma'am, yes. ओके, स्पीक बेटा, व्हाट इज द लाइन? मैम, जो लाइन होती है, हाँ मैम वो सिंपल लाइन ही होती है और उसके एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं। ओके, वेरी गुड, यस, अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट। म्यूट कीजिए अपने आप को अभी। लाइन हैज नो एंड पॉइंट, बट आपने अपने आंसर में राइट किया था बी ए। ओके, जहां पे देखिए बी ए के एंड पॉइंट तो है यहाँ पे, ये कैसे हुई हमारी लाइन? ठीक है, तो द लाइन इज हेयर द ओनली पी क्यू, मैंने यहाँ पे नेम भी दिया है, सो द पी क्यू इज द line. Okay, so now you people will tell the line segments, where you can see the line segments. Name that thing. Name that thing. BA is the line segment. You can also tell me the name of the thing. क्या दिख रहा है, कहाँ पे आपको लाइन सेगमेंट्स बनी दिख रही है? हाउस। ओके, वेरी गुड। AR, good. PQ, PQ. Okay, this, I think this was the previous answer. BA, light angle, good. Rajveer Singh, very good. Terrace, Hashika, okay, well done. Door, Sandeep Singh, very good.
अरमान BA। ओके बेटा जी, अरमान BA में आप स्पेस नहीं डालोगे, ओके। BA को साथ में ही लिखना है और कॉमर्स भी नहीं पुट करोगे। जब आप कोई भी लाइन सेगमेंट एंगल का नेम राइट कर रहे हो ना, देन अल्फाबेट्स के बिटवीन आपने कॉमर्स नहीं पुट करने। लाइक यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, BA इज द लाइन सेगमेंट, B एंड A में आप कॉमा नहीं पुट करोगे। बट अगर आप नेक्स्ट लाइन सेगमेंट राइट कर रहे हो ना, लाइक BA है यहाँ पे लाइन सेगमेंट, अनदर लाइन सेगमेंट कौन सी है, AR, सेकंड अब लिख रहे हो। Ma'am, your voice is not audible. Ma'am, your voice is not audible. Wait, beta, wait. Ma'am, your Paramveer, ma'am, voice is where not are you? Students, keep quiet. Ma'am, your voice is not audible. गायत्री Students, मैम, am I wait. audible? Yes, ma'am, now audible. ये स्टूडेंट्स तो बस पैनिक हो Okay. जाते हैं और दे बेटा, स्टार्ट वेयर आर यू। यस मैम, बेटा थोड़ा सा वेट कर लिया करो, ओके। समटाइम्स इधर से भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि इवनिंग टाइम प्रॉब्लम आती है ना नेटवर्क में, so kindly wait for 2-3 minutes. Okay. Okay. Can you tell me where you can see the rays? Rays. रंजीत को, जसमीर तो पहले से प्रिपेयर थी कि हाँ मैम ने वही पूछना है, अभी वही रह गया है। वेरी गुड। लाइट, बल्ब एंड सन। गुड। सनलाइन, सन रेज भी बोल सकते हो। यस, वेरी गुड दाक्षी। सन, डोंट राइट द सन। सन की शेप तो बेटा जी और ही है यहाँ पे, दिस इज नॉट शोइंग द रेज। वेरी गुड। एनी अनदर? पूजा सूद। पूजा सूद बेटा, अभी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, आपने आर कोमा क्यू पुट किया है ना, आर कोमा पुट किया है यहाँ पे, दिस इज द रॉन्ग। अगर आप सिंपली आर क्यू लिखते ना, कॉमा नहीं पुट करते, देन ये आपका राइट ऑप्शन होना था, राइट आंसर होना था। ठीक है, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था ये थिंग आपको, आप ध्यान से नहीं सुनते टीचर्स को। गुड। PR, PR. Okay, PR is also the array. Good, very good. Ground of the house. Okay, okay, good. Okay. Is there any angle formed in this figure? Is there any angle? Which kind of angles you can see here? कौन सी kinds आपको angle की दिख रही है? Right angle, acute, okay, right, obtuse, obtuse कहाँ पे है? चलो अर्शदीप जी आप अनम्यूट कर लीजिए अभी आपको, अपने आप को। ओके, कहाँ पे obtuse एंगल बन रहा है बेटा? मैम जो हट की जो ऊपर वाला पार्ट है, दिस वन। मैम दिस इज नॉट द obtuse एंगल बेटा, आई थिंक। Okay, I think this is the right angle. ठीक है, so yes, very good, right, acute. Excuse me, ma'am. So as you can see, this Excuse angle me, is ma'am. the right angle. Beta, write in the chat box. Yes, beta. Where is the query? You are not audible. Sonia Sandhuji, I warned you before, you will not allow to mute others. You are muted, Ma'am. बेटा। मैम पर वहाँ पे obtuse angle बन रहा है। ऑब्ट्यूज है, बट मुझे ये बेटा जी राइट एंगल लग रहा है। ओके, विदाउट, मैम एक ऐसा भी एंगल, एक ऐसा भी है। ओके, यस, मैम यहाँ पे 3 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। देयर आर 3 एंगल्स, यहाँ पे एक्यूट एंगल भी फॉर्म हो रहा है, इस साइड भी एक्यूट एंगल ही फॉर्म हो रहा है। ओके, यहाँ पे काफी एंगल्स यहाँ पे आप देख रहे होंगे फॉर्म हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए कौन सा एंगल है, दिस इज द राइट एंगल। अगेन हियर इज द राइट एंगल।
Okay, as you can see, there are many angles in this figure. Got it? Yes. Be ready for your next activity. Yes. Straight angle also. Good. Hargun Kaur. Very good. Yes. First is a diameter divides a circle into two dash. Very good, Hashika. Okay. Sandeep Koji, what you are writing? Semi. Okay. Spelling is wrong. Two halves, two parts. Good. Halves or parts. Very good, Vanshika. Yes. The diameter divides a circle into two halves. Okay. आप parts भी लिख सकते हो. Two equal parts भी आएगा. Halves भी आ सकता है. These are. मैम मुझे ये समझ नहीं आया था, मैम समझा दो. What thing? बेटा अभी मैंने स्टार्ट ही किया है. Okay. Diameter जो है, diameter. First of all, you will tell diameter is what is the diameter? You can simply write the main things of the diameter. Just simply write. What is the diameter? A line. Not a line, beta. Proper kind of line. Parts. Which parts? Longest chord. Okay, Rajni Gupta. A straight line in the circle or longest chord. All are sending the longest chord. Okay, anything else? I'm waiting for different answer. A line segment which passes through the center of the point. Center of the circle आएगा बेटा, यहाँ पे center of the point नहीं आएगा. ठीक है? The spelling of center are wrong. Ends. Okay. So yes, very good. Ends. A line segment which passes through the center of the circle. Okay. This is not the half of the circle, Sandeep Kaur. Diameter is not the half of the circle. Diameter divides a circle into two halves. Okay. Okay. So diameter, the proper definition of diameter is it is a line segment. First of all, diameter क्या है? This is the line segment. Listen carefully. No one will send any message in the chat box. Listen carefully. Diameter is just a line segment. Okay. First thing. Second thing is diameter is always passes through the center of the circle. Okay. Clear? First thing is diameter is a line segment. Secondly, it passes through the center of the circle. Third thing, the end points of the line segment are on the boundary of the circle, or you can say the end points of the line segment lies on the circumference. You know about the circumference? Yes. Circumference क्या होता है? What is the circumference? What is the circumference? Okay, arc. No, properly boundary of the circle. Only boundary of the circle. Only boundary of the circle. Just Smith, write in the chat box, beta. Just an arc. Just an arc, beta. No, not a just arc. Boundary and length of the circle. Ends. Okay. Okay. Proper meaning or definition, you can say the total length of the boundary of the circle. Anupama Bansal ji, stop cheating, doing cheating. Okay. आपने सेम जो है आपने एंस का कॉपी किया है आंसर और उसको पेस्ट करके सेंड कर दिया. I know, we know, all teachers know you are doing cheating in the classes. Okay. So the proper definition of circumference is the total length of the boundary. Circle होता है ना circular. So उसका अगर boundary का total length find करेंगे, that term is known as the circumference. ठीक है? So the main definition is the total length of the boundary of the circle is known as the circumference. ओके अभी भूलेगा तो नहीं. याद रखना है बेटा, एग्जाम नियर आ रहे हैं.
और आपने जो लर्न करना होता है ना एग्जाम पर्पज से नहीं, अपने जी के पर्पज से आप रीड किया करो, स्टडी किया करो अपनी। गॉट इट? So next is two rays with the common endpoint common. Very good. Hurry up. This is very simple. Very good. Angle, angle, arc. नीलू ढिंगरा arc कैसे हुई? Two rays with the common endpoint common angle. Very good. This forms an Excuse me, angle. ma'am. Oh, now you will tell what is the there is a particular term related to the common end points. जहाँ पे two rays के common end points meet करते हैं, then what is the name of that term? Vertex. Very good. Harshika is very active today, ना? Very good. Vertex. जहाँ पे बेटा जी टू रेस के कॉमन एंड पॉइंट्स मीट करते हैं और एंगल फॉर्म करते हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल. गॉट इट? नेक्स्ट, अ डैश हैज नो एंड पॉइंट्स. विच थिंग हैज नो एंड पॉइंट्स? लाइन. गुड. सर्कल. नॉट अ सर्कल बेटा, लाइन. वेरी गुड, वेरी गुड. Excuse Line me, is the ma'am. right option. Better write in chat box, Dakshi. Okay, next. Any portion of the dash of a circle. ध्यान से read कीजिए statement को. Okay, after that you will give your response. किसी का wrong नहीं होना चाहिए. Any portion of the dash of a circle is called an arc. Wrong. माला तिवारी, मैंने आपको पहले ही बोला था, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को. Line is wrong. Boundary. Okay, there is a particular word, बेटा. राजा राजा. अर्शदीप. अर्शदीप ने अपना आंसर करेक्ट कर लिया अभी. Circumference. Spelling circumference is wrong. Path. आदिल जी स्पेलिंग चेक कीजिए. ओके, यहाँ पे कंपटीशन नहीं हो रहा है बेटा जी. कोई किसने सेंड किया? आई एम फर्स्ट, आई वॉज फर्स्ट. अर्शदीप. कोई बैटल भी नहीं जहाँ पे हो रही है. आप बोल रहे हो मैं फर्स्ट हूँ, मैं फर्स्ट हूँ. ओके. रंजीत कौर एंड who was sending? Arshdeep. Okay, circumference. Any portion of the circumference of a circle is called an arc. Very good. Okay, you will write the circumference बेटा. आपको भी मेन टर्म पता चल गई है ना? The total length of the boundary is known as the circumference. So आपने circumference ही write करना है. मैम बट आपने मैम जो हमें करवाया है मैम आपने उसमें बाउंड्री लिखवाया. बेटा बाउंड्री जो होती टोटल लेंथ, बाउंड्री की टोटल लेंथ को हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं. देयर इज अ पर्टिकुलर टर्म फॉर दैट थिंग. ओके, अंडरस्टैंड इट. नेक्स्ट, वी यूज डैश ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट टू नेम एन एंगल. वी यूज ओनली लेटर्स. लेटर्स तो बेटा आपके कैपिटल लेटर्स भी होते हैं, स्मॉल लेटर्स भी होते हैं. कौन से लेटर यूज करते हैं? यू हैव टू राइट दैट थिंग. Capital letters. Very good. We use capital letters of the English alphabet to name an angle. आपको मैंने पहले भी बताया है, अगर ज्योमेट्री में कहीं पे भी आप लाइन, लाइन सेगमेंट, वे, एंगल नेम राइट कर रहे हो, वहां पे आपने जो नेम लिखने होते हैं ना, then you have to use the capital letters of the English alphabet. Okay, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपने माइंड में रखनी होती है. Got it? So next is the diameter always passes through the dash of the circle. ये तो बहुत टाइम रिपीट कर दिया आज मैंने. गुड. इनप्रीत जी रॉन्ग है आपका. राजा राजा जी चेक योर स्पेलिंग्स. गुड. The diameter always passes through the center of the circle. Very good. Very good. Very good. So that's all from my side. Beta, you can write in the chat box if you have any query. I will give responses.
Write your doubts in the chat box. In the chat box only. सोनिया संधू जी. मैम मुझे सर्कमफ्रेंस समझ नहीं आया. बेटा circumference is that thing, the total length of the boundary. अगर आपने सर्कल ड्रॉ किया है ना, सर्कल ड्रॉ किया है, अगर आप उसका उस पे एक पॉइंट ड्रॉ करो ना, सर्कल पे पॉइंट ड्रॉ करोगे, ओके, वहां से लेके सर्कल का जो प्रॉपर आपकी लेंथ, अगर उसको कैलकुलेट करो ना, अगर टोटल लेंथ फाइंड करनी हो, देन उस टर्म, वहां पे टर्म है एक सर्कमफ्रेंस. दैट टर्म इज नोन एज द सर्कमफ्रेंस. ठीक है, सर्कल की जो टोटल बाउंड्री होती है ना, टोटल लेंथ होती है जो बाउंड्री की, दैट इज नोन एज द सर्कमफ्रेंस. मैम मुझे चोर नहीं समझ बेटा आया. राइट इन चैट बॉक्स, राइट इन चैट बॉक्स. इट विल क्रिएट डिस्टर्बेंस, नहीं तो मेरी आवाज नहीं क्लियर होगी. ओके, नेटवर्क इशू हो जाएगा जहाँ पे. What is diameter? Diameter is a line segment which passes through the center of the circle and its endpoints are on the circumference. Okay? उसको अच्छे से रीड किया करो. जो आपका डेफिनेशंस होती है, मैंने डेफिनेशंस आपको राइट करवाई हैं. साक्षी, डायमीटर क्लियर हुआ अभी? कोड, ओके. कोड बेटा जी, दैट इज ऑल्सो द लाइन सेगमेंट. कोड क्या है? लाइन सेगमेंट ही है जिसके एंड पॉइंट्स क्या होते हैं सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे. ठीक है, तो द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल इज द डायामीटर. ओके, स्मॉल हमारे कोड्स भी होते हैं, बट जो लॉन्गेस्ट कोड होती है दैट इज द डायामीटर. सेंटर, मैम एक्सक्यूज मी मैम, यस आपकी आवाज डबलिंग हो रही थी. बेटा म्यूट योरसेल्फ, अदर स्टूडेंट्स म्यूट म्यूट योरसेल्फ. कर लिया होगा मैम. ओके, सेंटर, ओके, CENTRE. कोड को मैंने एक्सप्लेन कर दिया बेटा. बी में डाउट है, काइंडली अनम्यूट बेटा दाक्षी. मैम जो बी सेंटेंस है, two rays with a common end point form an angle. मैम क्या? यहाँ वर्टेक्स, मैम यहाँ वर्टेक्स नहीं आ रहा था. वर्टेक्स ही लिखा था वहां पे. मैम इसका आंसर एंगल है. टू रेज विद अ कॉमन एंड पॉइंट फॉर्म एन एंगल. ओके ओके, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो बेटा. क्वेश्चन वाज टू रेज विद द कॉमन एंड पॉइंट फॉर्म एन. वहां पे क्या फॉर्म हो रहा है, क्या बन रहा है वहां पे? एंगल ही फॉर्म होगा, बट यहाँ पे एंड पॉइंट्स मीट कर रहे हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज व्हाट? वहां पे होना था ये वाली थिंग, दैट पॉइंट इज नोन एज व्हाट? वहां पे आना था वर्टेक्स. ठीक है, वहां पे उन्होंने बोला कि टू एंगल्स, टू रेज जो हैं, देन अगर उसके एंड पॉइंट मीट हो रहे हैं, देन वहां पे कौन सी चीज फॉर्म हो रही है? वहां पे एंगल ही फॉर्म हो रहा है. वर्टेक्स तो पॉइंट आ गया ना हमारा. क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो थोड़ा सा. गॉट इट? योर क्वेरी इज क्लियर? यस. ओके ओके, सुनीता मैम, आई थिंक देयर इज. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. ओवर टू यू बेटा. अगर अभी भी आपकी क्वेरी रहती है, you can write in the chat box. I will respond in the chat box. Okay, I will give. Okay, thank you, ma'am. Okay. Good evening, everyone. So, without wasting the time, let's start our activity. So, beta, before starting the activity, I want to say you one thing कि आप लोगों ने listen carefully, आप लोगों ने एग्जाम में, क्योंकि आपका जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन आपने जो है मैप अपने पास पहले ही रेडी रखना है. इंडिया फिजिकल मैप.
On that day, I don't want to listen anything कि मैम हमारे पास मैप नहीं है. ठीक है, ये आपको अभी मैं एडवांस में बता रही हूँ. एंड आई विल रिपीट इट 2-3 times अगेन कि आप लोगों ने मैप इंडिया फिजिकल अभी परचेज करके रख लो ऑन एग्जाम डे, क्योंकि मैप भी आना है. अगर आप मैप नहीं रखोगे तो फिर मैप आपका जो है वो मार्क्स आपके जो है ऑलरेडी जो वो लेस हो जाएंगे. क्लियर है? आपको मैप के मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर आपने मैप नहीं रखा. वो आपकी मर्जी, आप 2 रख रहे हो कि 1 रख रहे हो, मैप तो एक ही करना है. मैम वर्ल्ड फिजिकल या फिर मैम इंडियन पॉलिटिकल मैप. Who is saying वर्ल्ड फिजिकल? मैंने वर्ल्ड फिजिकल तो नहीं बोला बेटा, इंडिया फिजिकल. लिसन केयरफुली, इंडिया फिजिकल. क्लियर है? चलिए, तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. इंडिया लाइज in the dash part of Asia. So I'm getting the answer. Okay. Vedansh, check the spelling beta. Spellings are wrong. Yes. So India lies in the dash part of Asia. The correct answer is southern. India lies in the southern part of Asia. Japneet Kaur. Japneet Kaur. She left the meeting. Yes, good evening बेटा. हाँ, जपनीत आप अच्छा मुझे ये बताइए, how many continents are there? No idea? अच्छा चलो आप मुझे नाम बताना शुरू करो. आपको कौन कौन से कॉन्टिनेंट का पता है, बताइए. Japneet ji, she left the meeting. If you don't know the answer, the best option is left the meeting. है ना? Very good. चलिए, जब जी also left the meeting. That means आप लोगों को आंसर नहीं पता होते. Can I? Who is there? हम कहना है बेटा हाँ जपनीत बोलिए बेटा. एशिया, यूरोप. मैम कैन आई? नो बेटा, हाँ बोलो जपनीत. लेट हर स्पीक, लेट हर. यस बेटा. एशिया, वेरी यूरोप, गुड. साउदर्न अमेरिका, नॉर्दर्न अमेरिका. शाबाश. 4 you told. Yes, साउदर्न अमेरिका, नॉर्दर्न. that's you know, that much you know. कोई बात नहीं बेटा. यस. If you know, very good. But नॉर्थ, आपने इसको नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका बोलना है. क्लियर है? यस वंशिका. वंशिका फ्रॉम ग्रीन. ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया. हाँ. एंड यस. चलिए म्यूट कीजिए. I can read the lips of Dakshi. She is saying Africa. Yes. The next is Africa. So total 7 continents are there. So 7 continents are there. It's okay, Shaksham Gupta. Your turn will come later. 7 continents and India is a part of Asia. Chaliye, next.
Read it carefully. Suppose you are standing in an island of India situated in Bay of Bengal. In which island you are visiting? परमीत कौर जी, आज क्या प्रॉब्लम हो गई है दोबारा से? Why you started presenting your screen? परमीत Ma'am? बेटा क्या Excuse प्रॉब्लम me, हो गई है? Sunita Joshi ma'am, listen me first. हाँ जी मैम प्लीज. ये मैम स्टूडेंट बार बार लेफ्ट करती है, फिर मैं इसको 4 टाइम एडमिट कर चुकी हूँ, 4 टाइम. Why she is doing परमीत like मैम, this, I don't know. परमीत मैम, Yes मैम, लेफ्ट हो जाती है फिर एडमिट, लेफ्ट फिर एडमिट. मैम इसको रिमूव कर देना. लास्ट मैं टाइम next मैंने इसको time- बोला था कि परमीत नाउ यू स्टार्टेड बिहेविंग प्रॉपरली बट अगेन शी स्टार्टेड दिस. कोई बात नहीं, इसके मार्क्स में अपने आप डिडक्ट कर दूंगी मैम बाद में, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जिन्होंने डिस्टर्बेंस क्रिएट करनी है उनके तो मार्क्स डिडक्ट होंगे ही होंगे. चलिए बेटा, I can't read the answer at that time because of the disturbance. Many of you have given the answer, so please keep going on. Give your answers. In last, I will tell you what is the correct answer. वंशिका बांसल जी, ये कौन सी पोजीशन में बैठे हुए हो आप? हाँ, सीधे बैठिए बेटा. कहाँ पे आप झूम रहे हो इधर उधर? हाँ जी, यस. स्पेलिंग देखिए, those who are writing Andaman and Nicobar, their spellings are wrong. Arshdeep Kaur, Amandam Nakabar, what is this? प्रोनाउंसिएशन देखो कितनी गलत हो जाती है. हर्षिता गुप्ता जी, बोथ द आंसर, दोनों के दोनों जो आइलैंड है वो बे ऑफ बंगाल में है बेटा. दोनों आइलैंड तो बे ऑफ बंगाल में नहीं है. सो दैट मीन्स आप लोगों को डाउट है, अभी भी आप लोगों को डाउट है. So beta, I will tell you the correct answer. If you are standing in an island of India situated in Bay of Bengal, the island you are visiting is Andaman and Nicobar Island. क्योंकि जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो आपका अरेबियन सी में है. तो चेक कीजिए कितने हैं जिनका करेक्ट था और कितने हैं जिनका रॉन्ग था. एंड द स्पेलिंग बेटा, spellings are wrong. Okay, Jasprit Kaur is saying, ma'am, my answer is wrong. Very good, beta, very honest. Next, Bikaner and Jodhpur are famous city of dash state. Be honest in giving the answer, क्योंकि अगर मैंने आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग की और आप आंसर नहीं दे पाए तो मैंने वही 2 मार्क्स डिडक्ट कर देने. Be very honest. Okay. काव्यांश भल्ला जी, काव्यांश मैम यस. हाँ जी, गुड इवनिंग बेटा. हाँ, मुझे ये बताइए काव्यांश कि आपने बोला है बीकानेर एंड जोधपुर आर फेमस सिटीज ऑफ विच स्टेट? Rajasthan. Tell me any other city of Rajasthan. If you have read the chapter, you must know it. अगर आपने चीटिंग की होगी आपको आंसर नहीं आता होगा. Within 5 seconds. 1, 2. You don't know? Ma'am, I know. No, I'm not asking who know. काव्यांश, आपने आंसर खुद दिया था कि यू चीटेड? सच बताइए बेटा. चीटिंग की थी? चलिए, आपने ऑनेस्टली बता तो दिया ना. चलिए बेटा, इफ यू विल नॉट रीड, आपको मैंने पहले भी बोला हुआ है कि मैं व्हेन आई विल क्रॉस क्वेश्चन यू द ट्रूथ विल कम. सच सामने आ जाए. ठीक है.
those who are unmuting उनके -2 हो गए हैं. Those who are unmuting -2 हो गए उनके. हाँ जी. So the correct answer is जयपुर, उदयपुर. सक्षम गुप्ता, बड़ा क्लियरली मुझे आपकी लिपसिंग से मुझे पता लग रहा है that you are giving the answer. Very good. चलिए the next one. सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है. ध्यान से रीड कीजिए और आपने पहले का आंसर देना है. पहले यू विल नॉट गिव मी आंसर, दोनों के आंसर एक साथ नहीं देने. वन बाय वन यू विल गिव मी आंसर. इंडिया हैज मैनी लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन, डेजर्ट, प्लेन्स. These landforms are called the physical features of India. So first is India is divided into dash types of physical features. The number you have to write here. So first is from Amandeep Bang, I think from Janvi 6, Dharya 6, Brahmjot 6, Vedansh, Dakshi Singh 7. Okay, the answers I am getting 6. Okay. Dakshi, are you there? Dakshi? Ma'am, yes. Yeah, I don't expect you that you will leave the meeting. कि मैम ने Ma'am, क्रॉस I am क्वेश्चनिंग not- की. Ma'am, Yes. no. Dakshi, you have written 7. Ma'am, yes. Yeah, please name them, please. No. Northern Plains, Northern Plateau, Southern Plateau, Coastal Plains, the Great Indian Desert, the islands. Coastal plain. Ma'am, yes. Coastal Plains, the islands, the Great Indian Desert, Southern Okay. Plateau, Northern Good. Plateau, and Northern Plains. How many? Ma'am, 6. One you are saying wrong. The 6 is the correct answer, but there is no northern plateaus. Plateaus are only in the southern part of India. The answer is northern mountain, northern plains, southern plateau, the coastal plains, island, Great Indian Desert. Chaliye, very good. Now start giving the answer of second. In which physical feature we can find dust storm? Okay, I am getting, okay, Janvi have written all the 6. Very good. Okay, Harpratap is saying desert, Jai Shiva. Jalota ji is saying desert. Okay. So many Sakshams are there. That is why we have to name you with your surnames. Okay, Laksh, all the time you give answer and then you left the meeting. Why is this so? आप आंसर देते हो और उसके बाद फटाफट से मीटिंग लीव कर जाते हो, क्या बात है? हाँ, ओके. भूवी सिंह डेजर्ट, परमीत कौरी सिंह डेजर्ट. परमीत, आपकी कंप्लेंट आज दोबारा आई है बेटा, वेरी बैड. हाँ जी. सो ओके, स्टूडेंट फ्रॉम कोमल भोगल ID, I don't know. Okay beta, very good, you are honest. So the correct answer is desert, and the correct spelling DESERT, desert. डस्ट स्ट्रॉम होते हैं जिसमें जो है वो धूल भरी आंधियां चलती हैं. अगर आप डेजर्ट में जाओ और कभी कोई तूफान देखो ना, तो आपको पता लगेगा कि जहां पूरे डेजर्ट एरिया है वहां पर सिवाय डेजर्ट के कुछ नजर ही नहीं आता. इतना, जब तूफान आता है तो इतना ज्यादा वहां पे जो है वो पूरी, और उससे उस टाइम क्या होता है कि जो अगर सफर कर रहे होते हैं ना डेजर्ट एरियाज में, वो क्या करते हैं, वो जमीन पे लेट जाते हैं. उनके ऊंट भी और वो भी जमीन पे जो है वो लेट जाते हैं और आंखें बंद करके, ताकि वो तूफान से बच सके. अदरवाइज जो वो डस्ट है वो उनकी आईज में जाके उनको नुकसान पहुंचा सकती है, और कई बार तो वो रास्ता भी जो है वो अपना भटक जाते हैं इससे.
चलिए नेक्स्ट। मैम प्लीज कैन यू एक्सप्लेन मी सैंड ड्यून? सैंड ड्यून्स होते हैं बेटा कि जब ये तूफान आते हैं तो वो रेत जब उड़ती है इधर उधर तो वो एक जगह इकट्ठी हो जाती है, तो वो एक जगह इस तरह से इकट्ठी होके ना ऐसे जैसे पूरा माउंट सा ढेर सा बन जाता है, और कई बार आप देखते हो ना तो वो ऐसे लगता है कि रेत का पहाड़ है कोई, उसको सैंड ड्यून बोलते हैं। चलिए, मीना विजिटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया in her summer holidays. It was very hot in daytime, but the nights were very pleasant. She found that only thorny plants grow here. Can you name the state where she visited? So I am receiving the answer. Okay. Spellings, पता नहीं आप क्यों नहीं correct लिखते बेटा, spellings are wrong. Good. These are the features of, yes, these are the features of that state. So Rajasthan is the correct answer. Very good. You all know the answer. और those who have cheated उनको पता होगा कि हमने cheating में भूवी जी, what is this Raja 6? I don't know whom name you have written here. चलिए बेटा एक यहाँ पे मैच कॉलम तो रॉन्ग है मेरा, आपने जो फर्स्ट है जो ए ईटानगर है उसको छोड़ दो और असम को छोड़ दो, बिकॉज वो मेरा रॉन्ग मैच हो गया है, अदरवाइज यू गिव द आंसर। फर्स्ट का आंसर दीजिए, थर्ड का और फोर्थ का, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट का बी, थर्ड का डी, फोर्थ का सी। वेदांश हैव गिवन, Beneath is writing B, D, C. Okay. Okay. जानवी ने तो पूरा टाइप ही कर दिया है। फर्स्ट का डांस, थर्ड वाटर सोर्स और फोर्थ है आपका, ओके वो आगे निकल गया, मुझे पढ़ ही नहीं पाई। ओके, एन्स अगेन कृषांग, ओके ओके, यस बेटा, छड़ी is a dance of Rajasthan. Oasis, water source in Rajasthan, and Myanmar is a neighboring country in the east. और वो जो मेरा रॉन्ग लिखा गया असम, उसकी कैपिटल है दिसपुर, तो स्टेट मैंने असम लिख दी, कैपिटल मैंने अरुणाचल प्रदेश की लिख दी। वो एक्चुअली मैंने पहले अरुणाचल प्रदेश लिखा था, बट वो पूरा इसमें फिट नहीं हुआ क्योंकि वो बहुत लंबे थे स्पेलिंग्स, तो मैंने असम चेंज कर दिया मगर ईटानगर को चेंज करना भूल गई, सो इट्स माय मिस्टेक। नेक्स्ट, फर्स्ट का आंसर दोगे आप सबसे पहले, सीजनल रिवर, फर्स्ट का आंसर। लक्ष्य सिंह बी, जानवी लूनी, कृषांग, सो स्पीडोमीटर से आंसर जो है वो जा रहे हैं। ओके, दाक्षी सिंह ब्यास, ओके, बेटा द करेक्ट आंसर इज लूनी। दाक्षी, मैम यस व्हाट हैपेंस? मैम मुझे पता नहीं था, मैंने तुक्का ही मारा था। हाँ चलिए, बताया तो सही कि तुक्का मारा था मैम। चलिए, तुक्के हर बार नहीं लगते, सो तुक्कों की बजाय अपनी जो है वो जो आपका सीजनल रिवर है दैट इज लूनी। ब्यास आपको दिखाई देती है, दैट इज इन यू कैन से, ब्यास आपका अमृतसर जाने वाले रास्ते पे जो है वो ब्यास रिवर है। उसके बाद मेरा नेटवर्क कनेक्शन थोड़ा सा चला गया दूसरे स्लाइड में,
तो आप सेकंड का आंसर देना शुरू कीजिए बेटा। सेकंड का आंसर दीजिए, द नेबरिंग कंट्रीज। वेट फॉर अ मिनट। neighboring Ma'am? country in Ma'am? south. Yes, yes beta, yes. नहीं मैम, आई एम स्पीकिंग। मैम, हाँ जी गायत्री मैम जी। screen is visible, ma'am. Choose the correct Screen- option you were asking. Yes. ओके ओके, एक्चुअली मैम मेरा चलिए, यस यस, मुझे लगा हाँ। शायद कि थोड़ा सा। No, ma'am, it is visible. Continue. Okay, okay. So you are giving the answer Sri Lanka. And Ains, who said you to give the answer of third one? हाँ? थर्ड का आंसर तो मैंने बोला ही नहीं था आपको देने को। नेबरिंग कंट्री इन साउथ। हर्षिता गुप्ता, म्यूट योरसेल्फ बेटा। So the correct answer is श्रीलंका। श्रीलंका हमारे साउथ में है, बांग्लादेश ईस्ट में है और चाइना जो है वो हमारे नॉर्थ में है। So the third answer, third is okay. Yes, the Indian desert is located in the western side. Western side. Clear है? सुनीता जोशी मैम। जलोटा जी, आर यू लिसनिंग? कि कुछ और ही बिजी हो आप? हाँ, चलिए बेटा। सो लोकेशन ऑफ इंडियन डेजर्ट इज इन वेस्टर्न साइड। द लास्ट, आपने फर्स्ट रिडल का आंसर देना है पहले। बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। आई विल गिव यू अ हिंट कि अब इसका नेम जो है वो थोड़ा चेंज हो गया है। अब इसके नेम में चेंजेस आ गए हैं। पहले ये 11 लेटर्स का होता था, जिसके लास्ट 6 लेटर इज अ फ्रूट। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। कभी कभी पेरेंट्स की भी जीके चेक कर लेनी चाहिए, है ना। Not receiving any answer till, ज्यादा मुश्किल डाल दिया क्या मैंने? Sakshi saying yes, ma'am. Brahmjot have given the first answer and very good Brahmjot, although the spellings are wrong. मैंने आपको फर्स्ट का आंसर बोला है तो फर्स्ट का ही देना है। I will accept only the answer of first one. Yes, no other persons can give. Satveer Kaur have written the spellings. Okay. बहुत वेरिएशंस है आंसर में। भूवी कहती है आई डोंट अंडरस्टैंड। भूवी हमेशा बिजी रहते हो डिजाइन बनाने में बेटा। I will tell you answer, whether it is wrong or right. It is 11 letters word, but now it is changed. Now इसका नाम थोड़ा चेंज हो गया है। थोड़ा सा मैंने कहा आपकी ब्रेन की एक्सरसाइज करवा दूं ना। So the correct answer, परमीत कौर कहते मेरे पास कोई मम्मा पापा कोई नहीं है। मम्मा मेरे फगवाड़ा है और मैं नहीं नानी हाउस हूँ। मेरे पापा दुबई हैं। ओके बेटा, ओके जी, ओके। तभी आप कभी लेफ्ट कर रहे हो, कभी प्रेजेंट कर रहे हो स्क्रीन, है ना परमीत? हाँ, Yes, ma'am. yes, हाँ। Vanshika have given that fruit is cherry. Yes, Vanshika, the correct answer is Pondicherry. Now it is known as Puducherry.
अब इसका नेम पुडुचेरी हो गया है बेटा. दोज हु वांट टू लीव दे कैन. इफ यू आर वेरी मच बिजी यू कैन लीव. पौंडीचेरी जो हमारी एक यूनियन टेरिटरी है, सो उसमें जो अब उसका नेम पौंडीचेरी से पुडुचेरी हो गया है. आईपीएल का मैच देख लो. हाँ प्लीज प्लीज सक्षम गुप्ता, आईपीएल का मैच देखो बेटा. एसएस के पेपर वाले दिन भी आप मैच जरूर देखना. ओके, मैच बहुत जरूरी है. मार्क्स का क्या है, 0 तो है ही हमारे पास लगाने को. कोई बात नहीं, यू कैन. चलिए, रिकग्नाइज द सिटीज. फर्स्ट वन, फर्स्ट का आंसर दीजिए. स्नेक लैंड, वेरी इजी. एक सिटी है इंडिया की, सॉरी स्टेट है इंडिया की, स्टेट. मैम मैं रोज देखता हूँ आईपीएल. लक्ष्य आई कैन अंडरस्टैंड बेटा, बहुत जरूरी है आपके. ठीक है, पढ़ने को आप नहीं जाग सकोगे रात के 11-11 बजे तक. कोई बात नहीं, इट्स ओके. देखा करो मैच, पर स्टडी भी. भूवी सिंह नागपुर, नागपुर, बट द करेक्ट आंसर इज फ्रॉम संदीप सिंह आईडी, नागालैंड. स्नेक को हिंदी में बोलते हैं नाग, एंड लैंड तो है ही आपका. आज मुझे लग रहा है कि ये रिडल बहुत मुश्किल डाल दी है मैंने. यस, सो नागालैंड इज द करेक्ट आंसर. संदीप सिंह ने इसका करेक्ट आंसर दिया. नेक्स्ट, आंसर स्टेट. वेरी इजी, वेरी इजी. आंसर स्टेट. हाँ, नाउ जानवी हैव गिवन द करेक्ट आंसर, उत्तर प्रदेश. आंसर को हिंदी में बोलते हैं उत्तर, और स्टेट को बोलते हैं प्रदेश. थर्ड है अनमैरिड गर्ल. धैर्य ने आंसर दे दिया है अनमैरिड गर्ल. अर्शदीप कौर, स्पेलिंग रॉन्ग है. अनमैरिड गर्ल संदीप कौर आईडी से स्पेलिंग भी सही है. और यस, द करेक्ट आंसर इज कन्याकुमारी. कन्याकुमारी. क्लियर है आपको? चलिए, सॉल्व दिस फ्रॉम माय साइड. बेटा जी, अगेन आई एम स्पीकिंग कि आप लोगों ने जो है वो अपना जो है मैप तैयार रखना है ऑन दैट डे. हाँ जी अभिनीत बोलिए, डाउट जल्दी से लिखिए चैट बॉक्स में अगर डाउट है. Ma'am, I can't write in the chat box. बोलिए, फिर बोलिए अभिनीत, जल्दी से बोलिए बेटा. मैम वो मैं पूछ रही थी, मैम आप बता रहे थे कि जब वो नीचे लेट जाते हैं मैम, जब बाद तूफान आता है, वो मैम क्यों लेटते हैं? बेटा ताकि डस्ट उनकी आंखों में ना जाए. ठीक है, क्योंकि वहां पे जो है डेजर्ट एरिया में बहुत ज्यादा डस्ट होती है, बहुत, क्योंकि रेत ही रेत होती है आसपास. कोई प्लांट कुछ तो होती नहीं है प्लांटेशन, और वो बिल्कुल ड्राई होती है. तो उससे क्या होता है कि वो आंखों में उनके जाने का खतरा रहता है. चलिए, यस लक्ष्य, यू कैन लीव बेटा. मैम मैं स्टॉप. एक्सक्यूज मी मैम. यस यस मैम, यस. एक्सक्यूज मी मैम. यस यस बोलिए, बोलिए बेटा. मैम डस्टॉन को मैम